Hello everyone, I welcome you all for this awesome course on biology for BPSC 67th and CDPO. In this series, we will be learning basics of biology, then we will be learning botany, then zoology, and finally we will be doing some miscellaneous thing to complete overall syllabus of BPSC science section biology. Okay, so without wasting any time, we go to our first chapter, that is basic of biology, and we will begin from basics of cell, that is cytology. So we are here into biology. We will be doing it in 4 parts. The first part is cytology plus other basics. The second part will be botany, third part will be zoology, and fourth part will be miscellaneous. Fine. Okay, so we start with biology, the cytology section. Okay, so cytology means study of cells, right? So let's see what is a cell. Cell is a basic structure and functional unit of life. So cell, what it is? Basic structure plus functional unit of life is called cell. Cell was first contained by British scientist Robert Hooke. Who discovered it? Robert Hooke in 1665. Okay. The smallest cell is Mycoplasma galacticum. Okay, just know it. Smallest cell is Mycoplasma galacticum. Okay, smallest cell Mycoplasma galacticum. Longest cell in human body is neuron. Longest cell in human body is neuron. Okay, now the biggest cell is egg of ostrich. Biggest cell is egg of ostrich. Schleiden and Schwann established cell theory in year 1838-39. Cell theory कब आया? 1838-39 में कौन दिया? इसका नाम है श्लाइडन, श्लाइडन एंड स्क्वान. ओके, SCHWN. फाइन. उसके बाद germ plasm theory was given by Weizmann. Germ plasm theory कौन दिया? WEISMAN. Weizmann. Main feature of cell theory: all organisms are composed of cell. Every body of every organism is made of cell. Each cell arises from pre-existing cell. Every organism starts its life from single cell. तो सेल थ्योरी क्या कहता है? सेल थ्योरी ये कहता है बॉडी मेड अप ऑफ सेल arises from pre-existing cell. First, every organism starts life from single cell. Every organism starts life from single cell. हर ऑर्गेनिज्म का क्या है? सिंगल सेल से जो है ये अपना लाइफ शुरू करता है. सेल दो तरह का होता है. कितने तरह का होता है सेल? दो तरह का होता है. कौन कौन होगा? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट. सेल दो तरह का, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट. प्रोकैरियोट और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. फाइन. प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव. प्रो है तो प्रो मतलब प्रिमिटिव. प्रिमिटिव होगा तो इसका क्या मतलब है? इसमें नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, अच्छी तरह आया हुआ रहेगा न्यूक्लियस के अंदर का सामान. न्यूक्लियस मटेरियल इज प्रेजेंट इन अ रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूक्लियोइड. फाइन. तो नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and nucleus material is present inside
न्यूक्लियोइड। एग्जाम्पल हो गया इसका वायरस, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया। ओके। यूकैरियोटिक सेल, कंप्लीट सेल होता है, कंटेंस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एंड न्यूक्लियस। ओके, तो इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली एंड न्यूक्लियस। Okay, the biggest single unit is called Actia bullaria. Nucleus contains chromatin made up of DNA and histone protein. Nucleolus is inside the nucleus. Okay, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस देखो। साइज ऑफ सेल, इसमें साइज क्या होगा, स्मॉल होगा जनरली, और ये लार्ज होगा। क्यों? क्योंकि इसमें यूकैरियोटिक सेल में ज़्यादा चीज़ होगा। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट, यहाँ पे प्रेजेंट। तीसरा क्रोमोजोम क्या होगा इसमें क्रोमोजोम होगा सिंगल क्रोमोजोम इन सर्कुलर इन शेप, ठीक है। सिंगल क्रोमोजोम विच इज सर्कुलर इन शेप। इसमें क्या होगा बगल वाले में, मल्टीपल क्रोमोजोम। चौथा membrane bound cell organelle are absent. membrane bound cell organelle, ऑर्गेनल्स पढ़ते हैं इसको, ऑर्गेनली एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन किस प्रोसेस से होगा, फिशन मतलब टूट के, और बडिंग पहले अपने में निकल जाएगा उसके बाद टूटेगा, ठीक है। और इसमें कैसे होता है सेल डिवीजन, इसमें सेल डिवीजन होता है माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। स्ट्रक्चर ऑफ सेल देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या होता है। अब सेल है तो सेल में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या क्या होता है स्ट्रक्चर, सबसे पहले सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल, ये रिजिड होता है, नॉन लिविंग होता है, फ्रीली परमिएबल होता है। इसका तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, रिजिड, नॉन लिविंग, फ्रीली परमिएबल। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और चाइटीन। इट प्रोवाइड्स शेप एंड रिजिडिटी टू वॉल। ये क्या करता है, प्रोवाइड्स शेप एंड रिजिडिटी, फाइन, टू सेल। सेल को क्या देता है, शेप और रिजिडिटी। ये मेड अप ऑफ सेलुलोज, चाइटीन, ओके। सेल वॉल हो गया। फिर सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन है ये, तो ये क्या होगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, विच फॉर्म्स द आउटर covering of animal cell. In plant cell it is found within the cell wall. It is thin, elastic, living, double layer permeable membrane. Thin, elastic, double layer, living, और उसके बाद क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। ये परमिएबल ही लिखा है, परमिएबल, सेमी होता है यार, सब कुछ नहीं एंटर करना होता है, मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका काम क्या है, regulates movement of molecule inside and outside cell, ठीक है। regulates movement of molecules inside and outside cell, ओके। और ये क्या होता है,
प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट सेल। और सेल वॉल का क्या सीन है? ओनली इन प्लांट सेल। ठीक है, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब हम लोग आएंगे प्रोटोप्लाज्म पे। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म, द होल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोटोप्लाज्म। तो होल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये मेड अप ऑफ वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस लाइक वाटर, आयन, सॉल्ट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इट इज लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ये क्या होता है? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल होता है। और क्या लिविंग होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है। पार्ट ऑफ सेल हो गया, मेड अप ऑफ वाटर, आयंस, सॉल्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सेट्रा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो प्रोटोप्लाज्म का 2 पार्ट होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म नाम से ही पता चला न्यूक्लियस के अंदर होगा, और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर। प्रोटोप्लाज्म होता क्या? 94% ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसका कितना? 94% किससे बना होता है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पकड़ लो, क्योंकि यही इसका ये भी है, सीक्वेंस भी है परसेंटेज वाइज। तो अगर परसेंटेज वाइज आता है तो इसी तरह इसको याद भी रहेगा ऐसे। ठीक है, इसका प्रोटोप्लाज्म का 80% क्या होता है? वाटर होता है। फाइन। द रेशियो ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म इज 81:19। तो प्रोटोप्लाज्म में इनऑर्गेनिक, ओके, इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक क्या हुआ? वाटर हुआ, से ऑर्गेनिक सब्सटेंस का रेशियो कितना? 81/19। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बीपीएससी का फेवरेट, माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया वाज आर सिलिंड्रिकल, रॉड शेप्ड और स्फेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। तो सिलिंड्रिकल, रॉड शेप्ड, ओके, रॉड शेप और स्फेरिकल, तो तीनों तरह का मिलता है, फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ओके, इट इज डबल लेयर्ड। देखो ऐसा दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया आमतौर पे, एक और अंदर में ऐसे। ठीक है, यह है माइटोकॉन्ड्रिया। होता क्या है इसका? देख लेते हैं। इट इज सराउंडेड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। ओके, इनर मेम्ब्रेन हैज मेनी फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टे। तो फोल्ड वाले को क्या कहते हैं? CRISTAE, क्रिस्टे। द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो इसके अंदर जो फ्लूइड होगा, ओके, ऐसे करके बनाए जाते हैं फ्लूइड, डॉट 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 डॉट, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैट्रिक्स। विच कंटेन्स मेनी एंजाइम एंड कोएंजाइम। इसमें क्या होता है? एंजाइम होगा ऑब्वियसली, एंड प्लस कोएंजाइम होगा जो एंजाइम को समर्थन देता है। समझ गए यहाँ तक? माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसिडर्ड एज अ प्रोकैरियोटिक सेल इनसाइड यूकैरियोटिक। इसको क्या हम लोग कंसिडर करते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल इनसाइड यूकैरियोटिक। फाइन। फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? रेस्पिरेटरी साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। दो फंक्शंस लिख देते हैं इसका। फंक्शन रेस्पिरेटरी साइट ऑफ सेल रेस्पिरेशन। ओके, तो सेल के रेस्पिरेशन का यहीं पे होता है। समझ में आ गया? रेस्पिरेटरी साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइजेस एनर्जी रिच कंपाउंड ATP। ये क्या सिंथेसाइज करता है? सिंथेसाइज ATP, अमाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, बस यही क्वेश्चन आता है हमेशा, ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये फेवरेट क्वेश्चन है।
ये दोनों, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे पता नहीं कितना बार क्वेश्चन पूछा है ये। दूसरा आ जाओ, अगला गोल्जी बॉडीज़। क्या हम लोग पढ़ेंगे अगला? गोल्जी बॉडीज़। ये क्या है भाई? गोल्जी बॉडीज वर डिस्कवर्ड बाय ऑब्वियसली गोल्जी बॉडी आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ ट्यूब्स, वेस्टिकल्स एंड वैक्यूल्स। तो मेड ऑफ ग्रुप ऑफ ट्यूब, वेस्टिकल एंड वैक्यूल्स, वेस्टिकल्स एंड vacuoles. In plant more it is more in number and there it is known as dictyosomes. Yes, in plants दो fact called dictyosomes and are more in number than human cell. ओके। फंक्शन क्या है? स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। तो गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या? एनर्जी तो मिलके माइटोकॉन्ड्रिया से, तो एनर्जी का ये मतलब कि अब क्या होगा, अब आगे और भी तो काम है, जैसे फंक्शनिंग क्या है, और भी तो फंक्शनिंग है सेल को चलाने के लिए। तो इसका फंक्शन, कुछ फंक्शंस कौन निभाएगा? गोल्जी बॉडी। क्या करता है ये? स्टोरेज करता है, प्रोसेसिंग करता है एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। जो भी सेल में मटेरियल है उसका ही स्टोरेज, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करता है। इट इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइकोसोम्स। और दूसरा फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स। Okay, it also helps synthesis of carbohydrate, okay, from simple sugar which combined with protein made by ribosomes, from simple sugar। और उसके बाद क्या होता है? ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स मिलकर के क्या बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। ओके, तो ये है यहाँ पे। तो क्या करता है गोल्जी बॉडी? एक तो ये स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल करता है, दूसरा सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइकोसोम्स करता है, तीसरा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस करवाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम्स करता है। आएंगे थोड़ी देर में वहाँ पे। और उसके बाद जो है दोनों मिलकर क्या बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है सर? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसे करके दिखेगा ये। यहाँ पे तुम्हारा न्यूक्लियस की तरफ हो गया और ये तुम्हारा सेल का मेम्ब्रेन हो गया या वॉल। हाँ, मेम्ब्रेन ही होगा, वॉल तो बाहर होता है। साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इट इज अटैच्ड विद न्यूक्लियस ऑन वन साइड एंड ऑन अदर साइड इट इज जॉइंड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ गए? और इसी पे लगा रहता है कहीं कहीं पे राइबोसोम्स। ओके, कुछ बाहर भी घूमता है। राइबोसोम्स पाएंगे। फंक्शन ER हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, इट फॉर्म सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ सेल। इसका दो काम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, एक प्लेस से दूसरा प्लेस तक पहुँचाएगा, और दूसरा सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ सेल। साथ में आ जाओ अगला, राइबोसोम्स। क्या है राइबोसोम्स? स्मॉल ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर फाउंड अटैच ऑन ER और इन फ्री स्टेट। ये तो बताएंगे, इट इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्मॉल, या तो ये अटैच होगा टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये फ्रीली मूवमेंट कर रहा होगा, ठीक है, फ्री होगा। इसका फंक्शन क्या है? बहुत सिंपल फंक्शन है, टेक्स पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। किस चीज में टेक पार्ट करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। आगे आ जाओ, लाइकोसोम्स या लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स
क्या करता है ये? हम लोग कहाँ थे? हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? हम लोग पढ़ लिए माइटोकॉन्ड्रिया, हम लोग पढ़ लिए सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म जिसका दो पार्ट था, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अभी हम लोग पढ़ रहे राइबोसोम्स हो गया। लाइसोसोम्स इसका क्या है? दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। सैक मतलब बोरा के जैसा दिखता है, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, फाइन। और दूसरा इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सिंगल मेम्ब्रेन। तो दो चीज़ें इसमें, सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है, बाउंड एंड कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और इसके साथ क्या होता है? इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, फाइन। फंक्शन क्या होता है? इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन का काम करता है। फंक्शन सेल के अंदर डाइजेशन का जो भी काम होता है वो यही करता है, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, ठीक है, सेल के अंदर के डाइजेशन की बात कर रहे हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन का काम करता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि सेल के अंदर का डाइजेशन से रिलेटेड काम करता है, फाइन। उसके बाद अब यहाँ देखा जाए, द एंजाइम्स फाउंड इन लाइसोसोम्स मे डाइजेस्ट द एंटायर सेल, सो इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। अब देखो डाइजेशन है तो डाइजेशन का एंजाइम भी होगा, तो इसका एंजाइम जो होता है इतना पावरफुल होता है, कैन डाइजेस्ट द एंटायर सेल, ओके, देयरफॉर कॉल्ड सुइसाइडल बैग ऑफ सेल। तो सेल का सुइसाइडल बैग होता है ये, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, दे आर नॉट फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और रेड ब्लड सेल से क्वेश्चन पूछता भी है ये बार बार बीपीएससी, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, नॉट फाउंड इन आरबीसी ऑफ मैमल, ओके। आगे बढ़े, सेंट्रोजोम्स, 9 नंबर क्या हो जाएगा? सेंट्रोजोम्स। It is only found in animal cell and takes part in cell division. Okay, तो found only in animal cell, takes part in cell division, दो चीज हो गया। और तीसरा, it is not bounded by membrane, consist of 2 centroid. It is not bounded by membrane, okay, not बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये किस चीज से है? बाउंडेड नहीं है, किससे? मेम्ब्रेन से, कोई बाउंडेड नहीं है ये। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद अगला हो जाएगा कि एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रियोल, कंटेन्स 2 सेंट्रियोल्स, 2 सेंट्रियोल होता है इसमें। फिर अगला चलो 10 नंबर पे, प्लास्टिड्स। ये सेंट्रियोल होता है, ये क्या करता है? हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। बस ये याद रख लो, अब इसमें इसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। स्पिंडल फाइबर, जब सेल डिवीजन होता है ना तो ऐसे करके होता है, ठीक है, ऐसे होने लगता है, यहाँ पे पोल्स बनता है और स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू होता है, ठीक है, इस तरह से। चलो इसमें नहीं जाएंगे, फंस जाएंगे, टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है ना, इतना डिटेल में नहीं जाना है, एग्जाम में आता नहीं इतना डिटेल। हाँ, तो नंबर 10 है प्लास्टिड्स। क्या है ये प्लास्टिड्स? दे आर फाउंड इन लीन प्लांट सेल, फाउंड कुछ एनिमल सेल में तो कुछ प्लांट सेल में। एनिमल सेल में क्या ओनली है? तो सेंट्रोजोम में। प्लास्टिड्स किस में फाउंड? ओनली इन प्लांट सेल, ओके। तो प्लास्टिड बेसिकली 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स। कौन कौन होगा? उल्टा लिख दिया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। सो इट इज नोन एज किचन ऑफ द सेल, देयरफॉर किचन ऑफ द सेल। इसी तरह का क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, किसको क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, इस तरह से, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? किचन ऑफ द सेल है। 2 यूनिट ऑफ मेम्ब्रेन हैविंग ग्राना एंड स्ट्रोमा। ग्राना आर मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड बाय सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड
thylakoid found in a stack contains chlorophyll molecule. Stroma is a matrix present inside chloroplast which contains polysynthesis enzyme and starch grain. A granum is composed of 20 to 50 thylakoids and granum is a site of light reaction during the photosynthesis while stroma is a site of dark reaction. देखते हैं इसमें लिखेंगे, इसके बाद पहले ये दोनों को लिख देते हैं, उसके बाद हम इसको लिखते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड्स वेरियस कलर, ये तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन, ये क्या है, वेरियस कलर के लिए है, ठीक है, वेरियस कलर के लिए है। और ये इसमें फिर से ये 3 तरह का हो सकता है। लाइकोपीन, ये जैसे एग्जांपल ले लो, LYCO लाइको, PINE पीन। लाइकोपीन क्या कहता है, रेड कलर इन टोमेटो, टोमेटो में क्या करता है, रेड कलर देने वाला सब्सटेंस को क्या कहता है, लाइकोपीन। दूसरा होता है कैरोटीन, कैरोटीन क्या करता है, येलो और ऑरेंज कलर इन प्लांट, ठीक है, येलो या ऑरेंज कलर देता है। और बीटा नीन फाउंड इन शुगर बीट, फाइन। और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस होता है, ये कलरलेस प्लस स्टोर्स फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, ओके। तो कलरलेस स्टोर फूड्स इन फॉर्म ऑफ स्टार्च कौन होता है, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, वेरियस कलर्स, एग्जांपल लाइकोपीन, कैरोटीन और बीटानिन। लाइकोपीन क्या होता है, रेड कलर इन टोमेटो, कैरोटीन क्या देता है, येलो या ऑरेंज कलर, और बीटानिन क्या देता है, फाउंड इन शुगर बीट। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट, इसको क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल। प्लास्टिड क्या होता है, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। और ओनली एनिमल सेल में क्या होता है, सेंट्रोजोम्स, ये क्या करता है, टेक पार्ट इन सेल डिवीजन, नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, इसका मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता, कंटेन 2 सेंट्रियोल्स दैट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं वो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, राइट, क्योंकि ये क्रोमोप्लास्ट का यहाँ क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है जो कि बहुत खतरनाक लग रहा है, तो हम लोग एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, CHLOROPLAST क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। Okay, why internet is not working? It should be working. Why isn't it working? Yes, this is the chloroplast structure. Give me more images. इतना खतरनाक, ठीक। स्ट्रोमा है, थैलिकॉइड सेल। अब इसमें मजा आएगा। इस वाले स्ट्रक्चर को करते हैं कॉपी इमेज और लेके आते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए। जो भी चीज़ समझना है कायदे से समझना है, एग्जाम में समझ ही काम आता है, बाकी कुछ भी काम नहीं आता। और ठीक है, देखते हैं, देखें क्या अब क्या क्या लिखा हुआ पढ़ें। क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय 2 यूनिट्स ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड ग्राना एंड स्ट्रोमा। तो 2 यूनिट का मेम्ब्रेन होता है जो कि ग्रानम और स्ट्रोमा से ये रहता है। ग्राना आर मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड बाय सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज थैलाकॉइड। तो ग्राना किससे बना रहता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। देखो ये सैक की तरह है ना, मतलब बोरा की तरह दिख रहा है। ग्रानम ये पूरा हुआ, ये क्या है, ग्रानम है, ठीक है। ग्रानम किस में बना है, सैक लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, ठीक है, सही बात है। मेड अप ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलाकॉइड्स, अच्छी बात है, फाइन। इट कंटेन्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, देखो हरा हरा दिख रहा है, तो थाइलाकॉइड्स का क्या है, कंटेन्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। अच्छा आगे बढ़ते हैं। स्ट्रोमा इज द मैट्रिक्स प्रेजेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। अच्छा तो मैट्रिक्स है, ये क्या है, मैट्रिक्स मतलब फ्लूइड, ठीक है। मैट्रिक्स प्रेजेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, तो एक तो हो गया ग्रानम, एक हो गया स्ट्रोमा। ग्रानम बना है थाइलाकॉइड से, थाइलाकॉइड्स में क्लोरोफिल होता है। स्ट्रोमा क्या होता है, प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स है जो कि प्रेजेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट होता है। ये क्या रखता है, फोटोसिंथेटिक एंजाइम एंड स्टार्च ग्रेन। तो इसमें क्या होता है, इस मैट्रिक्स में क्या होता है, कंटेन्स, क्या कंटेन करता है, 2 चीज करता है, फोटोसिंथेसिस एंजाइम और दूसरा स्टार्च ग्रेन। अच्छा उसके बाद ग्रानम इज कंपोज ऑफ 20 to 50 थैलेकॉइड्स। ग्रानम किधर गया, इसमें कितना होता है, 20 से 50 नंबर्स होता है, ठीक है। अच्छा ग्रानम इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। ग्रानम क्या होता है, साइट ऑफ
light reaction, okay, during photosynthesis and stroma is the site of dark reaction. स्ट्रोमा में क्या होता है, यह है साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। इसमें 2 ही 3-4 पॉइंट है, अगर आना होगा तो इससे सीधा क्वेश्चन आएगा, मजा आ जाएगा, तुरंत हम बना देंगे, ठीक है। और नहीं आना होगा और बहुत टफ तो इससे नहीं आना चाहिए, आमतौर पे नहीं आता है इससे क्वेश्चन, हमको तो आज तक नहीं मिला, ठीक है। देख लेते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, तो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर में क्या होता है, जो मैट्रिक्स होता है, जो फ्लूइड होता है, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एंजाइम होता है और स्टार्च ग्रेन होता है, ठीक है। जो उसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स होता है उसको कहते हैं हम लोग ग्रैनम। ग्रैनम का क्या सीन है, ग्रैनम का ये सीन है कि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर थैलिकॉइड से बना होता है, जो थैलिकॉइड्स कंटेन करता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ओके। और 20 से 50 नंबर का थैलिकॉइड जब एक दूसरे ऊपर स्टैकिंग कर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रैनम। ग्रैनम क्या होता है, लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस होता है। और एक पार्ट बच गया ल्यूमेन, पता नहीं ये क्या होता है, देख ले जरा। ल्यूमेन, LUMEN, ल्यूमेन क्या दिया, अच्छा कुछ और दे दिया। ल्यूमेन इन प्लांट्स कर दो, देखते हैं क्या मिलता है। ल्यूमेन, अरे यार ये दूसरा है, ल्यूमेन इन क्लोरोप्लास्ट, देख लेते हैं। स्ट्रोमा, ल्यूमेन इन क्लोरोप्लास्ट इज एक्चुअली नोन एज स्ट्रोमा। अच्छा, कहाँ है स्ट्रोमा, इसमें स्टार, ल्यूमेन को भी स्ट्रोमा ही कहते हैं, अच्छा। Thylakoids contain thylakoids membrane surrounding by a thylakoid lumen. In electron microscope study, each chloroplast contains 3 plasts. Chloroplast envelope, grana and stroma. ठीक है, ल्यूमेन भी एक तरह से स्ट्रोमा होता है। जो मैट्रिक्स हुआ ना इसके अंदर, थैलाकॉइड्स के अंदर, उसको ल्यूमेन कहते हैं, जो बाहर में होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत आसान भी है, ठीक है। वैक्यूल्स देख लें, वैक्यूल, ओके। तो वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल होता है, इट इज अ फ्लूइड फिल्ड इन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड डेड ऑर्गेनेली ऑफ अ सेल। इन प्लांट सेल इट इज लार्जर इन साइड बट इन एनिमल सेल इट इज स्मॉलर इन साइड। तो क्या होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेन का होता है। तो ये क्या होता है, एक ऑर्गेनेली है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन है और उसमें क्या फिल रहता है, फ्लूइड फिल रहता है, ठीक है, फ्लूइड फिल रहता है इसमें। और क्या है ये इसके अलावा और क्या है, ये जो है डेड ऑर्गेनेल है, ठीक है, डेड ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली है, ठीक है, ऑफ द सेल, ओके। तो ये 3 चीज़ है इसमें, सिंगल मेम्ब्रेन है, फ्लूइड इसके अंदर रहता है और ये डेड होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, प्लांट सेल में लार्जर होता है, एनिमल सेल में ऑब्वियसली स्मॉलर होगा, ओके। आफ्टर दिस वैक्यूल्स वी आर डन। फंक्शंस देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन osmoregulation, it stores toxic metabolic waste, okay। तो what is this, helps functions, helps in osmoregulation, fine। it is, or it stores what, it stores the toxic metabolic waste, okay, it stores the toxic metabolic waste, so it can also be called as dustbin of cell, fair enough। इसके बाद आगे चलते हैं, न्यूक्लियस, फाइन। न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्फेरिकल होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है और एक मेजर स्ट्रक्चर है जो कि सेल में फाइंड किया जाता है, ठीक है। स्फेरिकल, सेंट्रली लोकेटेड, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इन प्लांट सेल इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स पेरीफेरी। प्लांट सेल में कहाँ पे होता है ये, प्लांट सेल में शिफ्टेड टुवर्ड्स पेरीफेरी, बाउंड्री की तरफ का है, क्योंकि वैक्यूल बहुत ज़्यादा जगह ले लेता है इसमें। बाउंडेड बाय डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैविंग पोर, तो न्यूक्लियस ये हुआ, ठीक है, ये जो है डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, जिसमें क्या होता है, पोर होता है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। विद न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल इज प्रेजेंट, ओके। देखो ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये क्या हो गया, डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म,
अब क्या बोल रहा है, इसके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, ये वाला सेक्शन है, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, कंटेन्स 3 थिंग्स। कंटेन्स क्या क्या कंटेन ये करता है देख लेते हैं। सबसे पहले ये कंटेन करता है न्यूक्लियोलस, जो अंदर वाला, सॉरी इसके अंदर में है ये, हाँ न्यूक्लियोलस, LUS होगा ना, न्यूक्लियोलस, फाइन। एंड क्रोमैटिन मटेरियल, और दूसरा क्या है इसमें, क्रोमैटिन मटेरियल, ओके। न्यूक्लियोलस इज रिच इन प्रोटीन एंड RNA, ये क्या होता है, रिच इन प्रोटीन एंड RNA, फाइन। क्रोमैटिन मटेरियल इज थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मिंग नेटवर्क, ये क्या होता है, थिन प्लस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मिंग नेटवर्क्स। दिस इज मेड अप ऑफ जेनेटिक सब्सटेंस DNA, ठीक है, ये किससे बना रहता है, मेड अप ऑफ DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन प्रोटीन प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ओके। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन ब्रेक्स इनटू पीसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। तो सेल डिवीजन के समय क्या होता है, सेल डिवीजन के समय क्या होता है, सेल डिवीजन के समय होता है क्रोमैटिन ब्रेक्स इनटू पीसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, ओके। 3-4 चीज होता है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस होता है, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, सॉरी गलत लिख दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियो, देखो ये स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा ना कंट्रोवर्शियल है, ठहरो इसको ठीक से बनाने दो, अच्छा भी नहीं लग रहा है देखने में। ये हो गया न्यूक्लियस, फाइन, पूरा का पूरा, ओके। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये इसका डबल मेम्ब्रेन हो गया, ये पूरा ही क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होगा, एक न्यूक्लियोलस होगा, ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर कुछ क्रोमैटिन थ्रेड लाइक फाइबर्स होंगे, क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है, टिन मटेरियल, ओके। और बाकी जो जगह बच जाएगा उसमें क्या होगा, ये सब जो होगा, ओके। ये वाला जो ब्लैक से मैं बना रहा हूँ, ये क्या है तुम्हारा, न्यूक्लियर फ्लूइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ब्लैक वाला क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब क्लियर हो गया, ये होता है। फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का, ये भी कोई बताने की चीज़ तो है नहीं, ये तो सब समझता है। फंक्शन का मेनली क्या है, कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ सेल। फंक्शंस क्या फंक्शन करेगा ये, इट विल कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ डेली एक्टिविटीज, एवरी एक्टिविटी ऑफ सेल, कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल, ठीक है, कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी of cell, fine. So it is also known as control room, therefore also known as control room of cell। क्या कहलाता है ये, सेल का कंट्रोल रूम। क्रोमैटिन ट्रांसमिट्स हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑब्वियसली जब क्रोमैटिन क्या बनाता है, क्रोमैटिन क्रोमोसोम बनाता है, देख लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, क्रोमैटिन विल मेक क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम में क्या होता है, इसमें जीन होता है, जीन में क्या होता है, हेरिडिटरी कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा, फाइन। उसके बाद फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, हेरिडिटरी कैरेक्टर कौन देता है, पेरेंट्स देते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को। उसके बाद देख ले, अदर देन न्यूक्लियस डीएनए इज आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बीपीएससी पूछता है, अदर देन न्यूक्लियस, okay, DNA is also found in mitochondria and chloroplast हो जाएगा, ओके, फाइन। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल देख लें हम लोग जल्दी जल्दी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, क्या है भाई डिफरेंस। तो एक तरफ लिख देते हैं प्लांट सेल, एक तरफ लिख देते हैं एनिमल सेल। प्लांट सेल क्या है, साइज के हिसाब से देख लें।
तो साइज में प्लांट सेल लार्जर होगा, एनिमल सेल स्मॉलर होगा, ऑब्वियस है। सेकेंड देख ले, सेल वॉल प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, सेल वॉल का बताएंगे शुरू में ही, प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। और ये बनता है किसका किसका है, सेल वॉल बनता है किससे किससे, सेलुलोज से और चाइटिन से। उसके बाद आ जाओ, इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, कलर देता है, जो कि इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रोजोम्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स आर लार्ज इन साइज, वैक्यूल्स लार्जर इन साइज और ये स्मॉलर इन साइज, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ये देख लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। सेल बिकम्स टर्जिड, फाइन, सेल बिकम टर्जिड बिकॉज ऑफ एंडोऑस्मोसिस, बिकॉज एंडोऑस्मोसिस, जब अंदर में ऑस्मोसिस हो जाता है तो टर्जिड हो जाता है, फाइन। द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन इन्वॉल्व्स बोथ डिफ्यूजन एंड कैपिलरी एक्शन। इम्बिबिशन में क्या होता है, दोनों चीज होता है, कैपिलरी एक्शन भी होता है और दूसरा क्या होता है, डिफ्यूजन भी होता है, याद रखना है इसको। A cell increases in volume when it is placed in hypotonic solution. Cell volume increases when put in hypotonic solution. Fine. सेल है और चारों तरफ में क्या है, हाइपोटोनिक है, मतलब इससे इसका डेंसिटी कम है, ठीक है। रो आउटसाइड इज लेस देन रो सेल, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से अंदर पानी घुसना शुरू होगा, ठीक है। तो डेंसिटी मेंटेनेंस करने के लिए तो क्या होगा, सेल फूल जाएगा, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और फ्रेश एग व्हेन प्लेस्ड इन सॉल्ट वाटर फ्लोट्स, और ये भी एक फैक्ट है, फ्रेश एग व्हेन पुट इन सॉल्ट वाटर विल फ्लोट, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में, ओके। तो आ जाते हैं सीधा क्रोमोसोम्स पे। क्या होता है भाई, क्रोमोसोम पता ही है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल की तरह होता है, नजर आने लगता है कब, जब ये सेल डिवीजन वगैरह होता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बस ये जानना है कि क्रोमोसोम जो है क्या होता है। तो ये क्या होता है, हेरिडेटरी मटेरियल कैरी करता है, कैरियर है, ओके। और इंसान में कितना होता है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमंस हैव 24 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, आई मीन, हाँ देख लेते हैं एक बार और, तो कुछ नहीं लिखा है बुक में। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, हाँ अच्छा है। इसमें क्या क्या होता है, डीएनए होगा और प्रोटीन होगा, ओके। उसके अलावा पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पीशीज हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। पेयर में इसको देखो, पेयर में जब इसको एक्सप्रेस करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, डाइप्लॉइड कहेंगे, ठीक है। द सेट ऑफ अनपेयर्ड क्रोमोसोम, अनपेयर्ड को क्या कहेंगे, हैप्लॉइड कहेंगे, आधा हैप्लॉइड। गैमेट्स हैव हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसका एग्जांपल, गैमेट्स हैव हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। इसका क्या मतलब है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब क्या, देखो जैसे एक मेल गैमेट हुआ और फीमेल गैमेट हुआ, ठीक है। तो मेल गैमेट में कितना होगा, 24 क्रोमोसोम्स, फीमेल गैमेट में कितना होगा, 24 क्रोमोसोम्स, टोटल कितना हो जाएगा, 48 क्रोमोसोम्स, ठीक है। और ये जो नया जाइगोट बनेगा, मतलब जो मिल करके जो सेल बनेगा, ठीक है। देखो पिजन में 40 पेयर होता है, चिंपैंजी में 24 पेयर होता है, कैट सब में देखना होता है हम लोग को। इसमें स्कैरसिस में 1 पेयर होता है, ठीक है। ह्यूमन में 24 पेयर्स होता है, ह्यूमन में 24 पेयर होता है, जिसमें से 24th पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, बाकी 23 पेयर क्या होता है, अदर क्रोमोसोम्स होता है, ओके, नॉर्मल क्रोमोसोम्स होता है।
न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड इज कॉम्प्लेक्स, और गलत बात बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं, ठीक है। फाउंड इन, दो तरह का होता है, डीएनए और आरएनए, ठीक है। टाइप इसका क्या होता है, टाइप 2 डीएनए डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का क्या होता है, केमिकली न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट, दिस हैज 3 कंपोनेंट व्हाट, अच्छा पहले बेस देख लेते हैं। 3 कंपोनेंट, नाइट्रोजन बेस, डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लियस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो इसमें क्या होता है, 3 चीज होता है, न्यूक्लिक बेस, न्यूक्लिक नाइट्रोजन बेस, डाइऑक्सी राइबोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नाइट्रोजन बेस 2 टाइप का होता है, प्यूराइंस एंड पाइरिडिमाइंस। प्यूराइंस कंटेन्स 2 नाइट्रोजन बेस, एडेनाइन एंड गुआनाइन, ठीक है। नाइट्रोजन बेस जो होता है इसका, नाइट्रोजन बेस 2 तरह का होता है, 2 टाइप्स, प्यूनाइन एंड पाइरीमाइडाइंस। प्यूरामाइन में 2 तरह का नाइट्रोजन बेस होता है, इसमें एडेनाइन एंड गुआनाइन। और पाइरिडिमाइंस में क्या होता है, जो बच गया, थायामाइन एंड साइटोसाइन। थायामाइन जिसको कहते हो साइटोसाइन, ठीक है, साइटोसाइन। फाइन, thus the 4 kind of nucleotides present in DNA। तो यही 4 तरह का AT, AG, TC जिसको कहते हैं। तो AT के साथ जुड़ता है और GC के साथ जुड़ता है, ATGC, ठीक है। अब देख लेते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड फॉर्मिंग डबल हेलिक्स। तो डीएनए मॉलिक्यूल तो पता ही हम लोग कैसा दिखता है, डीएनए मॉलिक्यूल ऐसा, ठीक है, यहाँ पे कनेक्शंस रहेगा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो डीएनए मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। तो ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, ठीक है। डबल हेलिक्स से दिख ही रहा है। ईच स्ट्रैंड इज द बैकबोन ऑफ शुगर एंड फॉस्फोर। ईच स्ट्रैंड हैज द बैकबोन ऑफ शुगर एंड फॉस्फोर। इसमें बैकबोन क्या होता है, तो बैकबोन होता है शुगर एंड फॉस्फेट, फेयर इनफ। उसके बाद नाइट्रोजन बेस इज अटैच टू द शुगर। और इसके बाद क्या होता है, नाइट्रोजन बेस जो होता है वो किससे अटैच होता है, इज अटैच्ड टू शुगर। किससे अटैच होता है, शुगर से अटैच होता है। पढ़ ले जरा, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, इसमें कुछ टर्म्स है, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, बताइए शुगर से क्या अटैच होता है, नाइट्रोजन बेस होता है। और लास्ट में क्या होता है, फॉस्फेट होता है, ठीक है। ये तुमको क्या देता है, ये तुमको मिला करके न्यूक्लियोटाइड देता है, ठीक है। वही शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ओके, नाइट्रोजन बेसेस आर ऑफ 2 स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स फॉर्म पेयर विद हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो ए और ए टी के बीच में या जी और सी के बीच में जो ये होता है, ये कैसा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। इस बॉन्ड का नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। फाइन। एडेनाइन फॉर्म्स पेयर विद थायमाइन, एटी के साथ करता है और जीसी के साथ करता है। एडेनाइन एंड थायमाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और जी और सी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन 2 नाइट्रोजनस बेस होल्ड्स द 2 स्ट्रैंड टुगेदर। दिस स्ट्रक्चर कैन बी कंपेयर्ड विद स्टेप्स ऑफ स्पाइरल स्टेयरकेस, ठीक है। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड बिटवीन गुआनाइन एंड साइटोसाइन इज 3। तो जी और सी के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। फाइन। और एडेनाइन पेयर्स विद थायमाइन एंड वाइस वर्सा इन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और एटी के साथ कैसे करता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ डीएनए इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड। और डीएनए क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब पानी से दूर भागता है, ठीक है। सॉरी कहाँ गया, हाइड्रो, हाँ पानी के नजदीक रहता है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक। तो ये क्या होता है, ड्यू टू फॉस्फेट बॉन्ड।
तो 3-4 चीज़ें हमने सीखा। ए और ATGC होता है, ए और टी कैसा बॉन्डिंग में होता है, डबल बॉन्डिंग में होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, जी और सी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, फॉस्फेट बॉन्ड के चलते हाइड्रोफिलिक नेचर आता है डीएनए का। शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस को हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड और प्लस फॉस्फेट को हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है ये न्यूक्लिक एसिड कहाँ फाइंड किया जाता है? सेल में 2 तरह का होता है, डीएनए आरएनए। डीएनए में 3 चीज़ होता है, नाइट्रोजन बेस, डायऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। शुगर जो है नाइट्रोजन, ये इसके साथ नाइट्रोजन बेस 2 तरह का होता है, प्यूनिन और पायराडिमाइन। प्यूनिन में एडिनाइन ग्लूनाइन और उसमें थायमाइन साइटोसाइन होता है। डीएनए का मॉलिक्यूल ऐसा दिखता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बैकबोन होता है शुगर और फॉस्फेट का। नाइट्रोजन बेस किससे जुड़ता है? शुगर से जुड़ता है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, ये तो पढ़ ही लिए। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ डीएनए क्या हो सकता है? फंक्शन ऑफ डीएनए देख लें जरा हम लोग फटाफट। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन और सिंथेसिस 2 फंक्शन होता है। एक तो रेप्लिकेशन, यार इतना कॉम्प्लेक्स टर्म यूज नहीं करें हम लोग, सीधा स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, फाइन। और दूसरा है सिंथेसिस ऑफ आरएनए। हो गया। DNA is mainly found in nucleus. In a small amount, it is found in mitochondria and chloroplast. We have already discussed this. Phosphorus is essential constituent of nucleic acid. Subunit of DNA is nucleotide. ठीक है, तो DNA is made up of nucleotide. एक तो ये हो गया। दूसरा फैक्ट है इसके अंदर जीन इज अ हेरिडिटरी यूनिट विच इज मेड बाय स्फेरिकल सेगमेंट ऑफ डीएनए फाउंड ऑन क्रोमोसोम। चेंज इन बेस सीक्वेंस विद इन जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। ठीक है यार, अब आरएनए पे सीधा आते हैं। अगला टॉपिक हमारा आरएनए। ठीक है, आरएनए क्या है? आरएनए का सीन देख लेते हैं। आरएनए को हम लोग क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड मेड अप ऑफ फॉस्फेट, राइबो शुगर एंड नाइट्रोजन। तो ये क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और ये किसका मेड अप ऑफ है? मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। अगेन न्यूक्लिक एसिड होगा, ऑब्वियसली न्यूक्लिक एसिड होगा, या फिर न्यूक्लिक एसिड नहीं लिखते इसको, नाइट्रोजन बेस होगा, गलत लिख दिए थे, नाइट्रोजन बेस होना चाहिए। राइबोस शुगर होगा, क्योंकि इसका नाम है क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो इसका इसमें कौन सा होगा? राइबोस शुगर होगा। और तीसरा क्या होगा? तीसरा बहुत सिंपल सा चीज़ है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? नाइट्रोजन बेस हो ही गया, राइबोस शुगर हो गया। और फॉस्फेट पता ही नाइट्रोजन बेस किससे जुड़ता है या कि शुगर से जुड़ता है, हम लोग पढ़ के इसको वेरीफाई करेंगे अभी। ठीक है, इसका बेसिस क्या होता है? नाइट्रोजन बेस का नाम क्या होता है? इसमें कहीं लिखे है ना नाइट्रोजन बेस। इसमें 4 तरह का नाइट्रोजन मौजूद होता है, ए, ठीक है, जी, ए, इसको ना यहाँ डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं, AUGC, इसका नाम है यूरेसिल। बाकी सब सेम रहता है, वही ATGC वाला। ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल एक्ट्स विद एंजाइम नोन एज राइबो एंजाइम। तो आरएनए मॉलिक्यूल विच एक्ट्स एज एन एंजाइम, तो आरएनए मॉलिक्यूल विच एक्ट्स एज एन एंजाइम इज कॉल्ड राइबो एंजाइम। तो आरएनए मॉलिक्यूल जो कि एंजाइम की तरह एक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? राइबो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ काइंड्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए जिसको कहेंगे। टाइप्स ऑफ आरएनए, 3 टाइप का आरएनए होगा, 3 टाइप्स। कौन कौन होगा जी? एक हो जाएगा मैसेंजर आरएनए, mRNA, जो मैसेज लेके चलेगा। एक हो जाएगा राइबोसोमल आरएनए, rRNA, जो राइबोसोम्स के पास पाया जाएगा। और तीसरा हो जाएगा tRNA, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, rRNA का काम क्या होता है? mRNA का काम क्या होता है? मैसेज लेके आएगा डीएनए से। ठीक है, ब्रिंग्स मैसेज फ्रॉम डीएनए। डीएनए क्या करता है? मैसेज लेके आता है। अच्छा, tRNA क्या करता है? rRNA क्या करता है? प्रेजेंट इन राइबोसोम्स which is the site of protein synthesis, present at ribosomes। ठीक है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और तीसरा क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए, tRNA, इट इज कैरियर ऑफ अमीनो एसिड एंड ट्रांसफर इट टू राइबोसोम्स। कैरियर ऑफ अमीनो एसिड एंड ट्रांसफर इट टू राइबोसोम्स। ठीक है, फंक्शन
ऑब्वियसली फंक्शन क्या है आरएनए का, सिंथेसिस, आरएनए बोल रहे हैं, इसका राइबोसोमल आरएनए, इसका क्या फंक्शन है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए ये जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू एमआरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए वर्सेस आरएनए देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे ही आ गए हैं साइटोलॉजी के, ठीक है ना। डीएनए वर्सेस आरएनए, ओके, देखिए जरा फटाफट। इसमें शुगर का टाइप क्या होता है, शुगर टाइप डीऑक्सीराइबोज, इसमें राइबोज। इसमें बेसेस क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसेस, इसमें ATGC, इसमें AUGC, ठीक। स्ट्रैंड्स कैसा होता है इसका, इसका होता है डबल, ये होता है सिंगल। और चौथा लोकेशन कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाएगा न्यूक्लियस में। और ये कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाएगा न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, दोनों में पाया जाता है, ठीक है। सेल साइकिल वही है, अब सिंपल मेन कॉन्सेप्ट हो गया है। सेल साइकिल में आते हैं। सेल साइकिल का क्या है भाई, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जेनेटिक मटेरियल, सिंथेसाइजेस विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल एंड अल्टीमेटली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। कुछ नहीं है, सेल का साइकिल है, लाइफ स्पैन ऑफ सेल है। सेल जो है अपना सारा फिर 2 में टूट गया, तो ये सेल डिवीजन को सेल साइकिल भी, सेल डिवीजन द पार्ट ऑफ सेल साइकिल। सेल डिवीजन द प्रोसेस इन विच सेल इंक्रीजेस देयर नंबर इज कॉल्ड सेल डिवीजन, इट इज नीडेड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू। अच्छा, सेल डिवीजन 2 तरह से होता है। सेल डिवीजन समझिए क्या, डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन टू वेज, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस क्या है भाई, ये माइटोसिस, सेल डिवीजन अकर इन सोमैटिक सेल्स which take part in growth, repair and development, somatic cells, ठीक है। और इसके चलते क्या होता है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर एक्सेट्रा। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म asexual reproduction takes place by this type of cell division। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, आफ्टर माइटोसिस सेल डिवीजन वन सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू पेरेंट सेल। अब देखो माइटोसिस में क्या होगा, यहाँ पे अगर 24 पेयर्स था, ठीक है, तो इसमें भी 24 पेयर्स ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये डिवाइड हुआ है, सब कुछ इक्वल डबल बना करके ये डिवाइड कर गया। रिडक्शन डिवीजन ड्यूरिंग विच ईच डॉटर सेल, सॉरी यहाँ पर अनकंट्रोल्ड माइटोसिस में कॉस्ट कैंसर, ये इंपॉर्टेंट है। अनकंट्रोल्ड माइटोसिस कॉजेस कैंसर, ओके। दूसरा है मियोसिस। मियोसिस किस में होता है, सोमैटिक सेल में होगा, तो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा। इसका क्या सीन है, इसका ये है कि रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, टाइप ऑफ डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, ओवा एंड स्पर्म्स, ठीक है। तो ये कब होता है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। ह्यूमन में क्या है, गैमेट्स, ओवा एंड स्पर्म्स, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि इसमें मान लो 24 पेयर है, तो इसमें 12 इसमें होगा और 12 इसमें होगा, ठीक है। तो 12 मिलकर फिर 24 बनाएगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, तो दोनों से आधा आधा कैरेक्टर ले जाएगा। इट इज नोन एज रिडक्शन डिवीजन, ऑब्वियसली रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन डिवीजन क्यों इसको कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, बिकॉज हैप्लॉइड इज बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है, क्योंकि हैप्लॉइड बन रहा है, ना कि पूरा का पूरा सेम टू सेम ट्रांसफर हो जा रहा है, ठीक है। 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस फ्रॉम एंड 1 माइटोसिस, 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मियोटिक सेल डिवीजन। ये इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस में क्या होता था, 2 ही बनता था, ठीक है, लेकिन इसमें 4 बनेगा। तो मियोसिस से इसमें क्या होता है, 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। क्लियर है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ टर्म्स है। डाइप्लॉइड, 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डाइप्लॉइड। हैप्लॉइड पढ़ ही लिए, क्रॉसिंग ओवर
ठीक है, इसमें तो कुछ एली ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स गवर्न बाय जीन्स, एली कहते हैं इसको। फिनोटाइप कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन सीन डायरेक्टली, जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल, ये इंपॉर्टेंट है, एक टर्म में इसको जान देते हैं। टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट अभी हमने पढ़ा था ना सेल ऑर्गेनल्स में वैक्यूल, तो उसको मेम्ब्रेन वो पढ़ा था हमने कि वो सिंगल मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन सराउंडिंग वैक्यूल्स इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ठीक है। और वैक्यूल हमें पता है कि क्या होता है, डेड होता है। यूनिट मेम्ब्रेन द बेसिक ट्राई लैमिनर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसी के साथ साइटोलॉजी समाप्त होता है, फाइन। तो अब हम लोग जानेंगे नया चैप्टर है क्या, जेनेटिक्स, ठीक है। तो जेनेटिक्स में क्या है भाई, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट इज कॉल्ड हेरिडेटरी। तो एक जनरेशन है ये, इससे दूसरे जनरेशन में जब कैरेक्टर ट्रांसफर होता है तो क्या कहते हैं, इसको हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो हेरिडिटी यहाँ से फिर अगले जनरेशन, फिर अगले जनरेशन, फिर अगले जनरेशन में गया, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं, समझ गए। तो हेरिडिटी क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भेजने को कहते हैं हेरिडिटी, और जब जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं, फाइन। Mendel was the first who gave the idea of heredity based on his experiment in 1882 to 84. He is also known as father of genetics. तो father कौन है भाई जेनेटिक्स का, father of genetics मेंडल है, मेंडल MENDEL, ठीक है, ओके। और इसने क्या किया था, कौन सा प्लांट को चूज किया था मेंडल, इसने चोज पी प्लांट, मटर का पौधा को, ठीक है, फॉर एक्सपेरिमेंट। Mendel made cross between two pure plant having contradicting characteristics for single trait called monohybrid cross, tall and dwarf plant or heights, ठीक है। तो देख ले हम लोग इसमें मोनो, ये क्या किया था, इसका एक्सपेरिमेंट थोड़ा समझ लेते हैं। टी टॉल प्लांट, ठीक है, टॉल प्लांट, और यहाँ पे टी ड्वार्फ प्लांट, फाइन। अब क्या हुआ, क्रॉस कराया गया इसको, क्रॉस करके क्या हुआ, F1 जनरेशन, तो पहला क्रॉस जनरेशन से क्या हुआ, टी ऑल टॉल। फिर F2 जनरेशन जिसमें कि सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, सेल्फ पॉलिनेशन आएंगे इसका, अरे बहुत आसान है ये वाला भी, ये सबसे आसान चैप्टर में से एक है। देखो इसमें ना पूरा मैथमेटिक्स है। टी 25% टॉल मिला, टी 50% टॉल हाइब्रिड मिला, ठीक है, और बाकी टी 25% ड्वार्फ मिला, ठीक है। ये क्या हो गया, इसको क्या हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस, फाइन। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, बिटवीन टू प्योर, इफ द क्रॉस इज मेड बिटवीन टू प्योर प्लांट हैविंग टू पेयर ऑफ contrasting character that is color and shape for example, it is called डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो एक तो वो किया था मोनोहाइब्रिड, एक किया था डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसमें क्या किया, दो कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है ये करना चाह रहा है। मान लो इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पकड़ लेते हैं, साइज पकड़ लेते हैं, साइज नहीं शेप पकड़ लेते हैं, और दूसरा कलर पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो मान लो RRYY रेड, मतलब रेड नहीं, राउंड प्लस येलो, पी पीला वाला पी, और दूसरा RRYY रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है, रिंकल्ड प्लस ग्रीन, ओके, पी था ये। तो इसमें क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन कराए, तो इसका गैमेट्स क्या हो जाएगा, RY, और इसका स्मॉल y। तो इसका जब क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, क्रॉस हुआ इसका, तो F1 में क्या मिला हमें, RRYY ऑल राउंड प्लस येलो। क्यों, देखो जो भी कैपिटल से लिख रहे हैं वो एक्सप्रेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो स्मॉल से लिख रहे हैं वो हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, या अनएक्सप्रेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके। तो इसमें हमें ये मिला, फाइन। जब F2 जनरेशन पे हुआ, जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ इसमें, तब क्या मिला देखते हैं एकदम। तब देखो यहाँ से मैथमेटिक्स शुरू होता है इसका, ठीक है। एक हम लोग चार्ट बनाएंगे फटाफट, यही मजा है जेनेटिक्स चैप्टर का, ठीक है। ये मान लो मेल गैमेट है, ये फीमेल वाला है, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो गया ऐसे, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4। अब फटाफट हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ फटाफट से लगा रहे हैं। मेल गैमेट्स में क्या था, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y,
ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी होगा आर वाई आर वाई आर वाई और आर वाई, फाइन। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, आर आर वाई वाई, इन दोनों का, ये दोनों का यहाँ पे आएगा, इसका और इसका, फिर इसका और इसका कैसे होगा, आर वाई, मतलब ऐसे नहीं, आर आर वाई वाई, या उल्टा लिख दो यार, कोई क्या फ़र्क पड़ता है, वाई वाई, फिर इसका क्या हो जाएगा, आर आर वाई वाई, सॉरी दोनों कैपिटल है, सॉरी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर आर वाई वाई। तो ये कैसा है, राउंड प्लस येलो, ये कैसा है, राउंड प्लस येलो, ये कैसा है, राउंड प्लस येलो, और ये कैसा है, राउंड प्लस येलो। देखो सब में वाई कैपिटल और आर कैपिटल है। ये हो जाएगा आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई और आर आर वाई वाई, ये राउंड एंड ग्रीन आ जाएगा, ठीक है, राउंड प्लस ग्रीन। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, राउंड प्लस ग्रीन, ठीक है। फिर आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, रिंकल्ड प्लस येलो, यहाँ पे रिंकल्ड प्लस ग्रीन, हाँ येलो ही है, येलो, ठीक है। और फिर ये आर आर वाई वाई, आर आर वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर वाई वाई, आर आर वाई वाई। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा F2 का, 9:2। तो क्या क्या फिनोटाइप में, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकता है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या हमको मिल जाएगा, 9:3:3:1, चार ही ना हो सकता था व्यवस्था। देखो या तो वो राउंड होगा और येलो होगा, या राउंड होगा ग्रीन होगा, या रिंकल्ड होगा येलो होगा, या रिंकल्ड होगा और ग्रीन होगा, मतलब कि ग्रीन होगा, यही चार को मिल सकता था, ठीक है, यही चार पॉसिबिलिटी था, राइट। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 9:3:3:1। देखो जब हम लोग इसमें गिनेंगे कितना रिंकल्ड आया, मतलब कितना रेड एंड राउंड एंड येलो आया, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हो गया 8 और यहाँ पे एक होगा 9, ठीक है। तो 9 क्या हो गया, राउंड येलो। फिर सिमिलरली 9:3:3:1 आएगा। सिमिलर फिर देख लेते हैं जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, जीनोटाइप, जीन में किसका इसका परिवर्तन आया, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1:2:1:2:1:1, ठीक है, ये छोड़ दो, इतना एग्जाम में ही नहीं आएगा, एग्जाम में तो खैर ये भी नहीं आएगा। और इन्हीं दोनों एक्सपेरिमेंट में बेस करके क्या बताया, मेंडल ने अपना लॉ ऑफ हेरिडिटी दिया। और ऐसा क्या दे दिया लॉ ऑफ हेरिडिटी में, तो लॉ ऑफ हेरिडिटी में देख लेते हैं, लॉ ऑफ हेरिडिटी क्या है भाई, लॉ ऑफ हेरिडिटी क्यों है, क्या है, देखते हैं। पहला लॉ ऑफ पेयर यूनिट, पेयर्ड यूनिट, he proposed that when two dissimilar unit factors are present in individual, only one is able to express, the other one is the one that is able to express is called dominant and other is called recessive, ठीक है। जब दो रहेगा तो लॉ ऑफ पेयर्ड यूनिट, तो डोमिनेंट कैरेक्टर रहेगा कुछ और कुछ रिसेसिव कैरेक्टर रहेगा, ठीक है। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो क्या करेगा, वो एक्सप्रेस करेगा, वो एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस्ड होगा, और ये नॉन एक्सप्रेस्ड रह जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ऑफस्प्रिंग ऑफ क्रॉस ब्रीड पेरेंट ओनली शो डोमिनेंट कैरेक्टर इन F1 जनरेशन, ठीक है। ये क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। हाइब्रिड जो होगा क्रॉस ब्रीड से जो बनेगा, क्रॉस ब्रीड से बनेगा, वो क्या कहलाएगा, उसमें क्या होगा, F1 जनरेशन में क्या रहेगा, ये डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखेगा, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, F2 जनरेशन बोथ द कैरेक्टर विच इज गवर्न्ड बाय इज सेपरेटेड, ठीक है। F2 जनरेशन में क्या होगा, बोथ कैरेक्टर्स गेट्स सेपरेटेड। A law of independent assortment, during dihybrid and trihybrid cross 2 or 3 pairs of characters are taken, these characteristics segregate separately without depending on depending on other in F2 generation, ठीक है। तो आपस में ही सेग्रीगेट कर जाएगा, F2 जनरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा अगर डाईहाइब्रिड या ट्राईहाइब्रिड क्रॉस हुआ है।
उसके अलावा पढ़ ले टर्म रिलेटेड टू जेनेटिक्स का क्या है। एक तो लिंकेज है, लिंकेज इज एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ व्हेन टू जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम दे एक्सप्रेस देमसेल्फ टुगेदर इंस्टेड ऑफ इंडिपेंडेंटली, दिस इज कॉल्ड लिंकेज। ठीक है, तो लिंकेज में क्या होता है, जब सेम क्रोमोसोम पे 2 जीन आ जाएगा, ठीक है, जब सेम क्रोमोसोम पे 2 जीन आ जाएगा तो और दोनों खुद को एक्सप्रेस कर लेगा, बोथ एक्सप्रेस टुगेदर, ठीक है, कोई डोमिनेंट वोमिनेंट नहीं होगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या को कहेंगे, लिंकेज कहेंगे। उसके बाद म्यूटेशन, अगर जीन में सडन चेंज हो गया तो उसको म्यूटेशन कहेंगे। उसके अलावा तो टोटीपोटेंसी, जो कि इट इज़ अ पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू ग्रो इनटू कंप्लीट प्लांट। ठीक है, प्लूरिपोटेंसी, इट इज़ अ पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ सेल टू डेवलप इनटू एनी काइंड ऑफ सेल इन एनिमल बॉडी। Autosome, chromosome found in cell which are responsible for characters other than sex is called autosomes। देखो 23 पेयर्स होता है, ठीक है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इस तरह करते करते 20 फर्स्ट मतलब 2 होगा, कहने का मतलब 23rd होगा ये, तो यहाँ 22nd तक जो होगा ना ये ऑटोजोम होगा, समझ गए। और जो लास्ट बच गया ये 23rd ह्यूमन में, ये कहलाएगा सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, जीनोम, ऑल जीन प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेल इज कॉल्ड जीनोम। देखो गौर से देखो कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑल जीन्स प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेल इज कॉल्ड जीनोम। तो हैप्लॉइड में प्रेजेंट होने वाला हर सेल को क्या कहेंगे हम लोग, सॉरी, ऑल जीन्स को प्रेजेंट होने वाला क्या कहेंगे, ऑल जीन प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेल इज कॉल्ड जीनोम। हैप्लॉइड सेल कौन सा होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। प्लाज्मा जेन, जीन फाउंड इन ऑर्गेनेल्स ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मा जेन। तो प्लाज्मा जेन क्या होता है, जीन फाउंड इन व्हाट, इन ऑर्गेनल्स ऑफ साइटोप्लाज्म। सिस्ट्रॉन, फंडामेंटल यूनिट ऑफ जीन इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन फंडामेंटल यूनिट ऑफ जीन। Muton, unit of gene responsible for mutation. Recon, unit of gene that takes place in recombination. Fine, उसके अलावा तो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ जेनेटिक्स भी समाप्त होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है ह्यूमंस में। ओके, तो देख लेते हैं। ह्यूमन में मेल सेक्स क्रोमोसोम होता है, मेल वाला क्या होता है, मेल वाला होता है XY, और फीमेल वाला क्या होता है XX। ठीक है, during gamete formation in male, half of the sperm contain X chromosome while other half contains Y chromosome. In female, it will only contain X chromosome. Thus, when male gametes, that is sperm containing X chromosome, fertilizes an ova, the zygote develops into female. When the sperm containing Y chromosome fertilizes into an egg, zygote develops into male। मतलब देखो क्या होता है, स्पर्म है ये, ठीक है, तो मान लो बहुत सारे स्पर्म, मतलब ऐसे नहीं, इसको इस तरह से समझते हैं, और मान लो ये तुम्हारा एक सैंपल है स्पर्म का, ठीक है, तो इसमें 50% में Y होगा और 50% में X होगा क्रोमोसोम। फीमेल में क्या होगा, 50% में X होगा और अदर 50% में भी क्या होगा, X ही होगा, मतलब 100% X होगा। ठीक है, अब दो क्या होगा, अब इसमें होगा क्या, मान लो XY चला आ रहा है, ऐसे करके इसको बनाया था ताकि पता चले स्पर्म में, ठीक है, और ये ओवा है XX, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, या मान लो ऐसे, ये Y वाला है और ये X वाला, तो इसमें तो ओवा में तो सब X ही रहेगा, तो ये जाके इससे फर्टिलाइज होगा तो क्या देगा, XY वाला देगा जाइगोट, ये क्या बना देगा, ये मेल में डेवलप करेगा। यही अगर जो है X वाला था और ये जाके फर्टिलाइज करके X वाले से, ठीक है ना, स्पर्म है ये मेल वाला और ये ओवा है फीमेल वाला, ठीक है, तो ये जाके XX वाला जाइगोट हो जाएगा, जाइगोट पहला सेल को कहते हैं, ठीक है, तो ये क्या देगा, फीमेल देगा। तो हम टेक्निकल भाषा का यूज़ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल लेमन के भाषा में समझने की कोशिश करो चीज़ों को, आसानी से एग्जाम निकालना है, ना कि हमें इसमें विशेषज्ञ बनना है। विशेषज्ञ बनना होता तो फिर और पढ़ाई करते, पर विशेषज्ञ तो बनना नहीं है, राइट। तो आगे देख लेते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। यह होता है, इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमंस में। देख लेते हैं एक और डायग्राम है, बहुत अच्छा सा डायग्राम है, बहुत फेमस डायग्राम है, XX XY, ये हो गया फीमेल, ये हो गया मेल, इससे क्या निकलेगा, X निकलेगा, इससे X 50-50%, इससे X और Y, ठीक है, तो ये XX मिलकर क्या बनाएगा, गर्ल चाइल्ड बनाएगा, मतलब गर्ल चाइल्ड नहीं, ये फीमेल बनाएगा, ओके, ये X और ये Y मिलकर क्या बनाएगा, मेल बनाएगा, ये X और ये X मिलकर क्या बनाएगा, फीमेल बनाएगा, और ये X और ये Y मिलकर क्या बनाएगा,
मेल बनाएगा। देख रहे हो 50-50% चांस है मेल फीमेल का, तो 50% मेल का चांस है और 50% फीमेल का चांस है। इसको ऐसे भी देख सकते हो जो हम लोग चेकर बोर्ड बनाए थे, XX XY, ठीक है। देखो यहाँ पे XX बनेगा, यहाँ पे XY बनेगा, यहाँ पे X बनेगा, यहाँ पे XY बनेगा। देख लिए, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ 50% चांस मेल बनने का, 50% चांस फीमेल बनने का, तो बच्चों में सेक्स इक्वल ही होने का चांस होता है, ठीक है। Var body is found in female somatic cell. Fertilization is done in test tube in laboratory, but further development takes place inside mother womb. Sometimes sex determination is regulated by environment factor. In some reptiles, temperature determines the sex at which fertilized egg is incubated. ठीक है, तो sometimes, not in humans. That too in reptiles. क्या होता है? Temperature dependent sex regulation. ठीक है. Between one range of temperature, male will be born. Between other range of temperature, female will be born. In human, each cell contains 46 chromosomes, means 23 pairs. Any addition or removal in this number of sex chromosome or autosome causes genetic disorder. देखो हमारे अंदर कितना है? 46 है, मतलब 23 pairs। अब मान लो निकल गया किसी कारणवश, तो क्या हो जाएगा? उसके चलते जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा, मतलब जीन ही खराब हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कुछ सुपर पावर मिल जाए, हो सकता है कुछ जो नॉर्मल चीज़ है वो भी बर्बाद हो जाए, ठीक है। इसी का देख लेते हैं, 2 4 5 गो है इसका, 5 नहीं 8 है टोटल जो प्रॉब्लमेटिक चैलेंजेस होता है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है। जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिजीजेस, ठीक है। पहला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। पहला क्या है? KLINEFELTER, फिल्टर, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। क्या है जी ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? When male have an extra X or Y chromosome in sex chromosome, then the condition will be XXY। देखो कुछ नहीं है, क्लाइनफेल्टर है, मतलब देखो नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल मेल में क्या होगा? XY रहेगा, लेकिन ये वाला ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल में क्या होगा? XXY रहेगा या और XYY रहेगा, ठीक है। द मेल इंडिविजुअल विद सिंड्रोम हैव मैस्कुलिन डेवलपमेंट बट फेमिनाइन डेवलपमेंट नॉट कंप्लीटली सप्रेस्ड एंड इंडिविजुअल बिकम स्टेराइल। होगा क्या? देखो इसमें एक्स्ट्रा X आ गया, ठीक है, समझ लो XYY। तो इसमें क्या होगा? मेल कैरेक्टर्स तो रहेगा, मेल कैरेक्टर्स ऑब्वियसली रहेगा, ठीक है, बट फीमेल कैरेक्टर्स जो है ये नॉट फुल्ली सप्रेस्ड। तो फुल्ली सप्रेस तो हुआ नहीं फीमेल कैरेक्टर, तो कुछ फीमेल कैरेक्टर भी रह जाएगा। और उसके कारण क्या होगा? नेचर का बहुत अच्छा है, नेचर कभी भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे बिलीव करती है, ठीक है। तो इससे जो इस तरह के पर्सन से जो चाइल्ड उत्पन्न होता है, वो चाइल्ड के साथ प्रॉब्लम क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये सब क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं, मतलब दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। इन फीमेल व्हेन एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन XX, दे शो नॉर्मल डेवलपमेंट बट लिमिटेड फर्टिलिटी। ये तो मेल हो गया। और KS फीमेल में क्या होगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम फीमेल में क्या होगा? या तो XX ही हो सकता है और तो कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि XXY हो जाए तो मेल हो जाएगा, तो XXX ही होगा। तो ये क्या हो जाता है? नॉर्मल फीमेल होगी। क्यों? क्योंकि पहले ही से फीमेल और एक आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो नॉर्मल फीमेल होगी बट लिमिटेड फर्टिलिटी, ठीक है। लेकिन फर्टिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। मेंटल रिटार्डनेस इज ऑल्सो सीन इन दिस टाइप ऑफ सिंड्रोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम 47 इंस्टेड ऑफ 46। तो इसमें क्या होता है? मेंटल रिटार्डनेस भी होता है। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर की बात कर रहे हैं, पेयर की बात नहीं कर रहे हैं। तो 46 + 1 दैट इज 47 हो जाएगा, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम देख रहे क्या है भाई? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम समझ गए। अब सेकंड देख लेते हैं टर्नर। यहीं से क्वेश्चन आता है इसी सबसे, टर्नर सिंड्रोम। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? टर्नर सिंड्रोम, ओके। सो इन दिस टर्नर सिंड्रोम व्हेन फीमेल हैज सिंगल सेक्स क्रोमोसोम, देयर ओवरीज आर रुडिमेंट्री, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? देखो नॉर्मल में क्या होगा? नॉर्मल में क्या होगा? बहुत सिंपल चीज़ होगा। नॉर्मल फीमेल्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। XX होगा, X लिखे हैं। टर्नर सिंड्रोम फीमेल में क्या होगा? X0, X दूसरा रहेगा ही नहीं। तो उसके कारण क्या होगा? इसके कारण ये होगा कि उसमें क्या होगा? देयर ओवरीज आर रूडिमेंट्री एंड लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। रूडिमेंट्री ओवरी और दूसरा क्या? लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम हो गया। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ये डाउन सिंड्रोम व्हेन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज एडेड टू 21st ऑटोसोमल क्रोमोसोम, इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ डाउन सिंड्रोम। देखो होता कितना टोटल? 23 होता है, ऐसा ही ना होता है, ऐसे करके 21st, 22nd और 23rd, ठीक है। ये 1, 2, 21, 22, 23। अब होगा क्या डाउन सिंड्रोम में?
जब एक एक्स्ट्रा इस ये वाला, ये सब तो सेम ही रहेगा, ये 21st वाला जो है ना ये 3 हो जाएगा, ठीक है। 22nd भी वैसे ही रहेगा, 23rd भी, 23rd छोटा बनाता, हाँ 23rd भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। Now the clear when extra chromosome is added to 21st autosomal chromosome, it leads to development of Down syndrome. In this syndrome, person become Mongolism. The person is mentally retarded, eyes protruded, and irregular physical structure is present. क्या होता है इसका, इसके चलते क्या होता है, इसके चलते होता है ये कि mentally retarded, ठीक है, eyes protruded बाहर निकला रहेगा आँख, और irregular physical structure, ठीक है। क्लियर हो गया डाउन सिंड्रोम। आगे आते हैं पैटूस सिंड्रोम में, चौथा PATAUS, पैटूस सिंड्रोम। क्या है भाई ये पैटूस का सिंड्रोम, देख लें। दिस टाइप ऑफ सिंड्रोम इज डेवलप्ड बाय एन एडिशन ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम टू 13th क्रोमोसोम। देयर इज अ कट मार्क इन लिप एंड पर्सन इज मेंटली रिटार्डेड। देखो अगेन फिर वही है, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, 13th पेयर, 22nd पेयर और 23rd पेयर, ऐसा है, ठीक है। 1 2 13 22nd और 23rd, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये PS में क्या हो जाएगा, पैटूस सिंड्रोम में 13वां पे जो है गेम हो जाएगा, ठीक है। ये देखो गेम हो गया, और ये फिर 22वां और 23वां सब ठीक है, बस ये 13वां पे गेम हो गया, एक्स्ट्रा आ गया। इसके चलते क्या हो जाएगा, कट ऑन लिप, कट मार्क ऑन लिप, ओठ कट जाता है इसका, ठीक है, और प्लस मेंटली रिटार्डेड, दिमाग से रिटार्डेड रहेगा, ओके। उसके बाद अगला जाता है सिकल सेल अनेमिया, सॉरी अमेनिया नहीं, अनेमिया, सिकल SICKLE, सिकल सेल अनेमिया, ठीक है। क्या है भाई ये, it is a disorder of erythrocytes destroyed more rapidly than normal leading to anemia. These occur due to change in 11th autosomal chromosome. Again 13 पे तो देख लिया, अब 11वां पे भी वही होगा, 11th 23rd 1 11 23 दिखा रहे, ठीक है। तो इसमें यहाँ गेम हो जाता है, और ये गेम क्या होता है, चेंज होता है 11th, यहाँ पे चेंजेज आ जाता है। इसके चेंज के चलते क्या होता है, 11th में चेंज होने के चलते सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है कि RBC डाई मोर रैपिडली, हो गया। तो इसके बाद है फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है, नंबर 6 फिनाइल PHENYLKETONURIA, फिनाइल कीटोनूरिया। क्या है भाई ये, इन दिस ऑर्डर इराइथ्रोसाइट्स डिस्ट्रॉयड मोर, सॉरी, it is a born error of metabolism which results in mental retardation caused due to change in 12th autosomal chromosome. 11 से क्या होता था, सिकल सेल एनीमिया, 12 से क्या होगा, ये वाला फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 12th, दिस इज 23rd, तो इससे क्या होगा, ये वाला डिजीज होगा फिनाइल कीटोनूरिया। और इसमें क्या होता है, मेंटल रिटार्डनेस, ओके, मेंटल रिटार्डनेस। और ये क्या होता है, इट इज एन इन बॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये क्या होता है, बॉर्न एरर मतलब बचपन से ही होता है, जन्मजात ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का के रिलेटेड में ये जन्मजात एरर है, ठीक है। उसका बाद जो हेमोफीलिया बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, HAEMOPHILLIA, हेमोफीलिया क्या होता है, जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑर्डर इज लिंक्ड विद सेक्स क्रोमोसोम। तो ये 23rd पेयर पे होता है ये इसका जीन, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम पे रिलेटेड होता है, ओके। दिस डिजीज लीड्स टू फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, इसमें क्या होता है, लीड्स टू, ये आता रहा है क्वेश्चन, ठीक है, फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड के क्लॉट करने में ये फेलियर क्रिएट करता है। हेमोफीलिया के बाद कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, डिसऑर्डर लीड्स टू फेलियर इन डिस्टिंग्विशिंग रेड एंड ग्रीन कलर। इसमें क्या नहीं कर पाते हैं, रेड और ग्रीन कलर को हम लोग डिस्टिंग्विश, मतलब अंतर नहीं कर पाता आदमी, ठीक है, नहीं कर पाता है। द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज इज सिचुएशन ऑन सेक्स क्रोमोसोम, तो ये भी किससे रिलेटेड है, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बता ही दिए हैं, सब हम लोग डिस्कस कर ही लिए हैं। ह्यूमन में 23 पेयर्स होता है, और इसके साथ हमारा ये चैप्टर जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन समाप्त होता है, ओके। तो ये है हमारा नया चैप्टर, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, कैसे इवोल्यूशन हुआ हमारा ऑर्गेनिज्म का। मोर एंड मोर क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम लो कैटेगरी एनिमल टू हायर एनिमल इज कॉल्ड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है। पहले लो कैटेगरी थे
और अब क्या हो गया, हम लोग हाई कैटेगरी हो गए, मतलब हाईली कॉम्प्लेक्स हो गए हम लोग, कैटेगरी का कॉम्प्लेक्सिटी से लेना देना, ठीक है, बाकी और कोई इसका सेंस नहीं है। There are several evidences regarding organic evolution. Evidences क्या है? Homologous organ which are seen different due to their use in function, but internal structure and embryonic development are similar. Flippers of whale, feathers of bat, forelimbs of horse, paws of cat, and hands of human. All are same, but they appear different, but their function and internal structures are same. Analogous तो homologous organ क्या हो गया? Homologous organ इसका किससे लेना देना है? Same function बट डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? होमोलोगस ऑर्गन। उसके बाद आ जाओ, सेकंड वाला क्या है? एनालॉगस ऑर्गन, पढ़ देते हैं, लोगस ऑर्गन। ये होता है क्या? एनालॉगस ऑर्गन, ऑर्गन विच लुक सिमिलर ड्यू टू यूज्ड इन सिमिलर फंक्शन बट द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आर डिफरेंट। एग्जांपल, फेदर ऑफ बटरफ्लाई, बैट एंड बर्ड्स ऑल लुक सिमिलर बट द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन आर डिफरेंट। तो एनालॉगस ऑर्गन किसको कहते हैं? सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर हो और डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोसेस हो तो उसको क्या कहते हैं? एनालॉगस ऑर्गन। अगर सेम फंक्शन हो, यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ फंक्शन भी होगा, ठीक है, फंक्शन बट डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे फंक्शन ही लिखना ठीक रहेगा, ठीक है, एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, उसको क्या कहेंगे? एनालॉगस। और सेम फंक्शन रहेगा और लेकिन डिफरेंट मॉर्फोलॉजी रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? होमोलॉगस। वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? ये जी वेस्टिजियल ऑर्गन, दीज ऑर्गन्स विच अपीयर फंक्शनलेस, तो फंक्शनलेस हो जाता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है, ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म बट फंक्शनल इन देयर एंसेस्टर, फंक्शनलेस इन प्रेजेंट, फंक्शनल इन पास्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये ह्यूमन का टेल, फॉसिल आर रिमेन ऑफ एंशिएंट प्लांट और एनिमल विच प्रोवाइड्स एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। फॉसिल क्या होता है? रिमेन्स होता है, किसका रिमेन्स हो सकता है? या तो प्लांट का होगा या एनिमल का होगा। तो ये क्या हम लोग को करता है? गिव्स एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला हमारा एंसेस्टर था, ठीक है, इसमें टेल था, फिर अगला हुआ कुछ मिलियन ईयर्स बाद, ये एंसेस्टर जो थोड़ा ज़्यादा खड़ा होने लगा, इसका टेल छोटा हो गया, फिर जो पूरा स्टैंडिंग हमारा हुआ, ठीक है, इसमें टेल एकदम गायब ही हो गया। तो ये वाला इसका फॉसिल मिला तो हम लोग को पता चलता है कि हम लोग पहले टेल था, आज के डेट में पता चलता है टेल नहीं था, यही होता है, ओके। थियरीज ऑफ इवोल्यूशन, तो क्वेश्चन इससे थियरी पे तो ऐसा नहीं आता है, बस थियरी के बारे में हल्का सा जान लेना कि एग्जैक्टली थियरी का नाम क्या क्या था, ठीक है। एक पहला थियरी है लिनायस का, ये क्या क्या कंट्रीब्यूशन टू क्लासिफिकेशन प्रोवाइड एन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म, he also supported an idea that no species is new or each and every species originates from some pre-existing species, ठीक है। तो इसका क्या था? each and every species, okay, each and every species originates from some existing species, ठीक है। सेकेंड है लेमार्क, क्या है जी लेमार्क का देख लेते हैं। ट्राई टू एक्सप्लेन इवोल्यूशनरी प्रोसेस इन हिज बुक, द थ्योरी प्रपोज्ड बाय लेमार्क इज नोन एज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। बस इतना ही जानना, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, फाइन। थर्ड वन इज डार्विन, जानते ही हम लोग, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में इसका क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का थ्योरी है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ओके, ये समझ में आ गया। मोर और लेस इतना ही। देखो इसके अंदर में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा क्योंकि इनहेरिटेंस खुद में एक बहुत कम अंडरस्टूड टॉपिक है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा लेमार्क का देख लेते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, लेमार्क में, ठीक है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सपोज दिस इज ए हॉर्स, ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज ए हॉर्स, एंड ये चाहता है, क्या चाहता है कि यहाँ का जो ये पेड़ है, पेड़ का पत्ता ये खाए, लेकिन पेड़ का पत्ता बहुत ऊंचा है, तो क्या होगा? समय के साथ ये इनहेरिटेंस हो जाएगा, इसमें क्या होगा? समय के साथ ये नया कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर करेगा, ओके, और ये जिराफ बन जाएगा और ये पेड़ का पत्ता खा लेगा। ये है इसका, समझ गए?
ये होता है इसका क्या, ये होता है इसका एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। समय के साथ क्या हुआ, इसको जरूरत पड़ा तो ये अपना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो ये अपना गर्दन लंबा करता चला गया सक्सेसिव जनरेशंस में, और कुछ समय बाद ये नॉर्मल हो गया, तो अब जिराफ जो ऊंचा पत्ता खा लेता है। डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन क्या कहता है, डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन कहता है कि डिस्पाइट हैविंग एन इनॉर्मस पोटेंशियल ऑफ फर्टिलिटी द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिमेन्स विद इन अ लिमिट। इट इज ड्यू टू स्ट्रगल बिटवीन members of same species and different species for food, space and mate. Struggle eliminates the unfit individual, ठीक है, तो स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, उसके चलते अनफिट इंडिविजुअल क्या होता है, एलिमिनेट हो जाते हैं। द फिट ऑर्गेनिज्म पोजेसेस सम वेरिएशन विच आर फेवरेबल एंड दे कैन लीव द प्रोजेनी टू कंटिन्यू द फेवरेबल वेरिएशन। तो जो फिटेस्ट होगा उसके पास जरूर कुछ वेरिएशन होगा, जिसके पास जो उसका वेरिएशन है वो अपने प्रोजेनी को देता है और वो फिर आगे बढ़ते चला जाता है। फॉर लॉन्ग टाइम गिव लाइफ टू ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, और यही जो वेरिएशन है लॉन्ग टाइम के बाद एक नया स्पीशीज को जन्म दे देता है, ठीक है। मॉडर्न सबसे मोस्ट रिसेंट कौन सा थ्योरी है, मॉडर्न सिंथेटिक थियरी, ठीक है। तो मोस्ट रिसेंट थियरी है इन विच ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इज बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो इसमें क्या होता है, दोनों कहा जाता है, ठीक है। लेमार्क को भी इसमें मिला दिया है और डार्विन को भी मिला दिया है, और ये वाला बनाया, और ये ज़्यादा एक्यूरेट भी होता है इस तरह का, ठीक। ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और हमारा जो बेसिक ऑफ बायोलॉजी था वो यहीं पे खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उसका नाम है बॉटनी। ओके, so friends, I really hope that you like this video. If you like this video, give it a thumbs up and don't forget to share it with your friends, and do subscribe our channel for more such important contents related to BPSC, CDPO and all other examinations to get your dreams fulfilled. Till then, study hard and follow your dreams. Bye bye.